convert, the kingdom of God has come. प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के आने के बारे में घोषणा की। And both Matthew and Mark emphasize the beginning of our Lord's ministry. और दोनों सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और मरकुस सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के राज्य के आगमन की घोषणा करते हैं। After this, if you read the next passage in Matthew and in Mark, is the temptation of our Lord Jesus. और अगर आप उसके बाद पढ़ें दोनों सुसमाचारों में, मत्ती में और मरकुस में, तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा का वर्णन He goes out into the wilderness वो जंगल में चले जाते हैं and is tempted by the devil. और वहाँ शैतान ने उसकी परीक्षा की। What kind of temptation? ये कैसी परीक्षाएं थी? Did the devil come with 2 years and a long tail and all that? क्या शैतान उसके पास 2 सिंहों के साथ और एक लंबी पूंछ के साथ आया? In our pictures, sometimes we make the devil look like that. हम अपने चित्रों में शैतान को ऐसे ही बनाते हैं। Again, that's only a picture. अब ये तो चित्र है। No, Satan comes to us in our mind and in our नहीं, heart. लेकिन शैतान हमारे मस्तिष्क में आता है, हमारे मन में आता है। And that's why I like to think that the temptations of our Lord Jesus were the temptations that came to him as he prayed in the desert. और मैं ये आपके साथ सोचना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह उस जंगल में प्रार्थना कर रहे थे, तो उसके सामने परीक्षाएं आई। How do we know about those temptations of our Lord? और हम यीशु मसीह के सामने आने वाली उन परीक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? Nobody was with him. कोई भी उसके साथ नहीं था। How did Matthew and Mark and Luke know about that temptation? और इसलिए मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना लूका उसको कैसे जान पाए? Jesus must have shared it with his disciples. और निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ शेयर करी होगा, बताया होगा बात। At some point, कहीं ना कहीं, some point, we don't know when. कहीं ना At some point, यीशु ने he बताया। must have opened up his heart उसने अपने हृदय खोल कर उनको बताया होगा। and he told them what had happened और उसने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ in the wilderness. जंगल में। Again, how many temptations are there? कितनी परीक्षाएं हैं? 3. 3. Only 3. And it takes us 2 minutes to read. और हमारे लिए 2 मिनट की जरूरत है कि हम 2 मिनट में इन तीनों परीक्षाओं को पढ़ सकते हैं। But Jesus was in the desert for many days. पर प्रभु यीशु मसीह उस जंगल में बहुत दिनों तक था। So that temptation, that prayer went on for a long time. और इसलिए वो परीक्षा उसके जीवन में बार-बार आती रही। That's why I like to think it was part of his struggle within his soul, in his mind. इसलिए मैं आपके साथ ये सोचना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह संघर्ष में होकर गुजर रहे थे, जो उसके मस्तिष्क में था, उसके हृदय में था। What was the struggle? और उसका संघर्ष क्या था? How is this kingdom, ये राज्य, God's kingdom, परमेश्वर का राज्य, how is it to come? वो कैसे आएगा? We all have this temptation. और हमारे जीवन में ये परीक्षा बार-बार आती है। We want to do something, हम कुछ करना चाहते हैं, something good. अच्छा कार्य करना चाहते हैं, We want to pass an examination. हम परीक्षा में पास होना चाहते हैं। How will I pass it? कैसे मैं पास होऊंगा परीक्षा में? Sometimes the temptation is take a little piece of paper with you in your pocket and go to the examination. कभी-कभी परीक्षा आपके सामने आती है, कुछ नहीं, एक छोटा पर्चे में कुछ लिख लो, जेब में रख लो और परीक्षा हॉल में चले जाओ। You want to pass the examination, so by some means or other you pass it. क्योंकि आपको एग्जाम में तो पास करना, परीक्षा पास करना, तो कुछ ना कुछ करके पास हो जाओ। That's the temptation. अरे परीक्षा है। To be dishonest, to use some other means. और परीक्षा पास करने के अलग-अलग तरीके हम Right now in our Methodist church, अब हमारे मेथोडिस्ट चर्च में we are going to have the election of 4 bishops हमारे बीच में अब 4 बिशप के चुनाव होने हैं in November. नवंबर महीने में। And now from now everybody is getting very active in Episcopal election. Now they are not free for anything except that. And so I understand there are about 36 people who are contesting Episcopal elections. मुझे ऐसा लगता है कि करीब 35-36 लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। That's what I want to do.
और मैं ये कहना चाहता हूँ, So how will I get elected? इसलिए इतने सारे लोग सोचते हैं कि कैसे मेरा चुनाव हो जाए। There are many ways. बहुत से तरीके हैं, This is the temptation. और ये परीक्षाएं हैं, And one of the temptations और एक is परीक्षा उसमें से ये भी है, some cash for vote. Some cash. नोट वोट के लिए। This happened in Parliament. See what a big tamasha they made there. और हम जानते हैं कि हमारे संसद में कितना तमाशा हुआ इसका, And it is happening in the church also. और ये कलीसिया चर्च में जैसी हो रही है, Cash for votes. नोट के लिए बदले वोट। Jesus went through that same temptation. प्रभु यीशु मसीह उसी परीक्षा से गुजरा। Kingdom of God has to come. स्वर्ग राज्य वो आना है, How will it come? कैसे आएगा वो? And so in his heart and his mind, the temptation comes. और उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में ये परीक्षा बार बार आता रहा। If you are the Son of God, और ये परीक्षा क्या थी कि अगर तू ईश्वर का पुत्र है, make these stones into bread. तो भूखा क्यों है, इसको रोटी बना ले। What better way to show God's kingdom by feeding the hungry? और ये बहुत बड़ा कार्य है ईश्वर के राज्य को प्रकट करने का कि जो भूखे प्यासे हैं उनको रोटी बना के खिला दे। Sometimes in our ministry, और कभी-कभी हमारी सेवकाई में we think that the best way to bring people in is to give them things. और कभी-कभी हम सोचते हैं कि लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए एक अच्छा तरीका ये है कि उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति आप कर दो, Make these stones into bread. इन पत्थरों को रोटी बना दो। Could Jesus do that? क्या यीशु मसीह ऐसा कर सकता था? He can do.